بہت خوش قسمت ہے کہ وہ آئے وہاں پر تشریف لائے. اور جب وہ آتے تھے تو ٹھنڈی ہوائیں چلتی. وہ بندہ اچھا ہونا ہے, کتنا دل اس کا شفاف ہونا ہے, کتنا کو وہ عاشق رسول ہونا ہے. کیا بات ہے. Hey, what's up guys, this is Ahmad Lal Shah here and back again with the new video. تو ابھی ہم احتکاف بیٹھنے جا رہے ہیں, میں ویس بھائی. چلتے ہیں دکھاتے ہیں. اور ابھی دیکھے جی ماموں لوگ ہمیں چھوڑنے جا رہے ہیں, پیچھے ویس بھائی آ رہے ہیں. یہ ویس بھائی جا رہے ہیں اور یہ ہم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, پورے سامان. ہاں جی ماموں. ہاں چھوڑنے جا رہا ہوں بچوں کو ہی. یار ٹھیک ٹھاک ہے. ہاں ٹھیک ٹھاک. ایک بابو یہ کھڑے ہیں بس. ابھی ہم ماشاءاللہ سے مسجد میں پہنچ گئے ہیں, تو انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی چاند رات کو. ایسی بات ہے, ایسی بات. لو جی, اپنے دونوں ایک بھانجا ہے اور ایک بھتیجا ہے. تو سو فائنلی بائے بائے, ملیں گے اب چاند رات والے دن. اللہ حافظ. پہلے تو دعائیں کریں گے انشاءاللہ, مناجات ہوگی, دعا ہوگی, تو مفرد نہیں برتن کر کے توجہ کے ساتھ جو مناجات میں شامل ہوں. ساری کائنات تیری محتاج ہے, تو کسی کا محتاج نہیں. اے میرے قریب رب عز و جل جل جلالہ سب کو سعادت مند کر دے, سب کو نواز دے, سب کی بخشش کر دے, سب کو اپنی رحمت کا صدقہ جہنم سے آزادی عطا کر دے. اے میرے اللہ, تیرے خزانے بڑے ہوئے ہیں, اگر ہم سب نواز دیے جائیں, اگر ہم سب کو جہنم سے آزادی مل جائے, اگر ہم سب کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے, سچی توبہ کی توفیق عطا کر دی جائے, تیری عزت کی قسم تیرے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی. اے میرے اللہ, تیرے خزانے بڑے ہوئے ہیں, اپنی رحمت کی طرف نظر فرما. مولا, ہم کیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں, تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہمارا خالق ہے, تو ہی ہمارا رازق ہے, اور ہم تیری بارگاہ سے اسی لیے مانگ رہے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے. اے میرے اللہ, تو ہی ساری کائنات کا پالن ہار ہے. بس ہماری چوریوں کو مولا ہماری نیک و جائز مرادوں سے بھر دے, سعادت مند کر دے, ایمان پر استقامت عطا کر دے. مولا, بڑی آزمائش میں ہے, ہم نہیں جانتے ہمارے متعلق تیری خفیہ تدبیر کیا ہے. قبر تیرا کوٹھڑا, ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. قریب اندھیری قبر میں اترنا ہے. او قبر کی تاریکی, قبر کی وحشت, قبر کی گھبراہٹ, وہ کیڑے مکوڑے. اے میرے اللہ, ہم نے قبر کی تیاری کا کوئی سامان نہیں تیار کیا. اپنی رحمت کا صدقہ مولا ہمارے حال پر رحم فرما. یا رب, ہماری چوریوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے. جتنے اسلائی بھائی موجود ہیں, اپنی رحمت سے ہمارے ماں باپ کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما, ہمارے عزیز و اقارب کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. اے میرے اللہ, اپنے محبوب کی ساری امت کے حق میں یہ دعا قبول فرما. مولا, تیرے نبی پاک, ہمارے نبی پاک, کوئی گناہ, کوئی امتی تیری رحمتوں سے محروم نہ رہے. مولا, گناہوں کی طرف نہ دیکھ, اپنی رحمت کی طرف نظر فرما. اپنے محبوب کی ساری امت پر عام رحمت فرما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت, اللهم ارزقنا راحة عند الموت, اللهم ارزقنا رحمة بعد الموت, اللهم ارزقنا زيارة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم عند الموت. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اللهم دمر قبورنا بنور نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله على حبيبه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
माशाल्लाह जी आज हमें इधर तीसरा दिन हो गया, ठीक है। वैस भाई कैसा लगा ज़रा बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा मामू हमें मिलने आए थे, हमारे को शूट कर लिया वीडियो। जो बदलता है लेकिन उसका क्या बदल जाता है। हम कहते हैं ना यार मैं तो यारों की कंपनी में फंसा, मेरी जॉब का मसला है, मैं मतलब बस कभी साहब क्या बताएं आपको, हम बड़े फंसे हुए हैं हमारे। अल्लाह अकबर। A few moments later. भाई जी The next. हेलो गाइस, तो हम जा रहे हैं हमाद को एतकाफ से उठाने, तब के लिए पीस। निभाना है तो हमें बख्श निभाना है। दुनिया का कानून तो ये है कि जब कोई मुजरिम बेगुनाह जुर्म कर देता है तो दुनिया की अदालत उसे सजा देती है, उसे कैद में डाल देती है। और रब ताला की बारगाह का अंदाज बड़ा निराला है कि रब की बारगाह में जब कोई मुजरिम आ जाता है, आकर निदामत के आंसू बहाता है, आकर अपने जुर्म को कबूल करता है, अल्लाह ताला उसे माफी अता फरमा देता है। A few moments later. The next day later. अल्हम्दुलिल्लाह जी ईद की नमाज हम पढ़ रहे हैं। हाँ जी दादा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक जी, सब नूं ईद मुबारक। और सब खरीद ठीक ठाक, सोहनी ईद गुजर गई है। सारिਆਂ ਨੂੰ ईद मुबारक, इम्तियाज ईद मुबारक, इरफान इम्तियाज सब नूं ईद मुबारक। जी हाँ जी दादा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दिल ईद मुबारक जी। क्या बात है। इम्तियाज साहब आपको भी दिल ईद मुबारक, पान साहब आपको भी, अरसान आपको भी ईद मुबारक, शाम साहब आपको भी, वसीम बेटा दे दे ईद मुबारक। साढ़े तरफों सब नूं ईद मुबारक, दिल ईद मुबारक। इधर आओ बच्चा पार्टी। बात रहो। A few moments later. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हैं आप सब? आज माशाल्लाह से ईद का तीसरा दिन है और वीडियो बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मतलब बस ना बहाने नहीं दे रही कि आपको बताऊं, बात थोड़ी सी लंबी है। उधर चेयर ले हम बैठ जाते फिर करते हैं शुरुआत। हाँ जी, तो बात ही है जी, इत्काफ बैठे उधर माशाल्लाह बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा हमारे दोस्तों के साथ। हो सकता है वो भी वीडियो देख रहे हो। तो एक काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। क्या गफलत बड़ी दुनिया में हम वक्त गुजार रहे थे, तो ज़िंदगी की समझ आ रही है ज़रा। अल्लाह ताला बस हमें तौफीक दे के बस इसी तरह उसकी राह में लगे रहें, ना हमसे दोबारा भी गफलत भरा काम हो। तो बस वो 10 दिन बहुत याद आते हैं जो अल्लाह के घर में गुजार के हैं। अल्लाह ने इतने समझ ले तकरीबन
कितनी आबादी होनी है शहर में, जिसमें से हम 100 बंदों को तकरीबन चुना। उस मस्जिद में हम 100 बंदे थे, ठीक है। 30 आखिरी दिनों में आए थे, 3 रोज़ों में, बाकी 70 हम पहले थे, ठीक है। तो बस ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, उसने अपने घर का मेहमान बनाया। हम गए रहे, बहुत कुछ सीखा दीन के बारे में, और इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे भी जो बहुत सीखा है, क्योंकि दीन को सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए, ठीक है। वीडियो में जब मैं आया हूँ तो सोच रहा था वीडियो बनाऊँ, लेकिन नहीं, फिर दिल नहीं था करता। तो जब मैंने वीडियो भी बनानी थी तो मैंने काफ़ी बातें सोची थी कि यार मैं ये भी बात करूँगा। अच्छा, वहाँ पे सीन ये है कि 70 बंदे थे ना हम, जब हम गए तो उधर ना ग्रुप्स बन जाते हैं। ग्रुप्स को कहते हैं उधर हल्का, ठीक है। मतलब समझ ले 15-15 बंदे होते हैं, ठीक है। उनका एक हेड बना दिया जाता है जो कि आलिम दीन होता है। मतलब उनकी मतलब हमसे ज़्यादा होती है कि दीन के बारे में उनको पता है, वो हमें सिखा सकते हैं। हर एक हल्के का निगरान बना दिया जाता है, मतलब कि ग्रुप का निगरान बना दिया जाता है। आपको आसानी हो जाए बताने में मेरा ना, कि आपको समझने में आसानी हो जाए जो मैं कह रहा हूँ। तो वो भी हमें सिखाते हैं चीज़ें, कैसे क्या करना है, नमाज का तरीका करने की कोशिश करता है। बस सब अल्लाह से यही दुआ है कि बस सब उसकी राह में चले। इंशाल्लाह आपको भी हर वीडियो में कोई ना कोई अच्छी बात मिलेगी, अच्छी बात सीखने को मिलेगी इंशाल्लाह, ठीक है। और मज़ीद बेहतर होगी वीडियो तो दीन के मुतालिक होगी। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता, काफ़ी बातें पहले याद थी, लेकिन अब एकदम माइंड में अब जो आ रहा ना बस वही बोल रहा हूँ। नहीं तो पहले मैं काफ़ी दिन मैंने ये भी बात करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ऐसे बताऊँगा वैसे, ठीक है। ये है कि हर रोज़ कोई ना कोई बात याद आई तो आपको ज़रूर बताया करूँगा, सही है। तो यार व्लॉग का अब कोई पता नहीं डेली आए कब नहीं आए, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी मैं बड़ा अपसेट हूँ, सही है। क्योंकि जब अल्लाह के घर में आप रह के आए हो, लाइक आप लगा लें इत्काफ़ का इतना स्वाब है, 2 उम्रे 2 हज का, समझ आप अल्लाह के घर ही रह के आए, तो आते साल की इस गफलत भरी दुनिया में दिल नहीं लगता। बंदा याद करता है यार मैं कहाँ था, मैं काश उधर ही रहता। लेकिन ये है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उन्होंने दीन भी देखा, उन्होंने दुनियादारी भी रखी। बस अब यही दुआ है कि यार अल्लाह बस बख्शिश करते हैं हमारी, बस अल्लाह बख्श दे हमें, बगैर हिसाब के बख्श दे, बस यही दुआ है अल्लाह ताला से। तो आप इजाज़त दें मुझे, तो ठीक है गाइस, मैं मिलता हूँ आपको इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।